Okay, let's start with our today's session. Okay, in previous session we had discussed about one is logistic regression. Yes, in previous lecture we had discussed about the logistic regression, and then afterwards we had discussed about the overfitting and underfitting. Yes, agree with me or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. In previous lecture, we had discussed logistic regression. Then afterwards, we had discussed that is of the overfitting and the underfitting. Okay. Anyone, what is underfitting? What is underfitting? Okay. We had also discussed like the term, two terms. One is the दो terms discuss की थी हमने. We had discussed the two terms like one is bias and second is variance. Yes or no? क्या थे ये दोनों terms? Bias and the variance. मैम bias when error of training get जब हम कोई भी तब एरर आता है जब हम डाटा को ट्रेन कर रहे होते हैं, और वेरिएंस जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं, जो एरर आए वो होता है हमारे पास वो वेरिएंस. हाँ, जब whenever the error occur during the training time, that is the variance. When the error occur during the or when error occur on the training data, that is the bias. Okay. In today's session, we will discuss about the regularization. Now, what is the main purpose of using the concept that is regularization? Regularization is basically used to reduce the complexity of the model. Is basically used to reduce the complexity of the model and also used to reduce the computational cost. अब इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या है कि हमने कॉम्प्लेक्सिटी मॉडल की रिड्यूस करनी है, हमने कंप्यूटेशनल कॉस्ट रिड्यूस करनी है. कंप्यूटेशनल कॉस्ट की हमारी कॉस्ट जो है कम लगे, ठीक है. मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी मींस कि एक मॉडल है, एक मॉडल को प्रिडिक्ट करने के लिए मे बी 5 फीचर्स रिक्वायर्ड हो, मे बी 10 फीचर्स रिक्वायर्ड हो, मे बी 2 फीचर्स रिक्वायर्ड हो. ये चीजों की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं दैट इज द रेगुलराइजेशन. व्हेनेवर वी वांट टू रिड्यूस, अभी तक हमने क्या किया था, वी आर जस्ट डिजाइनिंग आवर मॉडल, we are designing our model for the different types of data sets. Okay, अभी तक हमने डिस्कस किया कि if the data set is like the in the linear order, continuous order, then we use the linear regression. If data is in the binary form, then we use the logistic regression. If we want to classify the data, then we use the SVM. अभी तक हम कर रहे थे कि डाटा सेट जैसा अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंगली हमने एल्गोरिथम यूज करना है. ओके, अब कोई भी एल्गोरिथम हो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कैसे करनी है, ठीक है, कंप्यूटेशनल कॉस्ट कैसे रिड्यूस करनी है, उसको यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द रेगुलराइजेशन. क्लियर? क्लियर? यस, टर्म समझ लग गई. रेगुलराइजेशन बेसिकली हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मॉडल्स अवेलेबल हैं उन मॉडल्स की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उन मॉडल्स की कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. ओके, नाउ regularization can be executed or categorized into the two types. One is the ridge and second is the lasso. One is the ridge and second is the lasso. Okay, regularization को अगर मैंने implement करना है, implementation means कि मैं अगर किसी मॉडल की complexity को reduce करना चाहती हूँ और मैं उसकी computational cost को reduce करना चाहती हूँ, तो दो मेथड से कर सकती हूँ. One method is that is the ridge and second method is the lasso. Okay, एनी इन दोनों में से कोई भी मेथड को मैं यूज करके अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकती हूँ. क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद द रिज. रिज कंसेप्ट. अभी तक रेगुलराइजेशन पता लग गया क्या करना है इसमें हमने? यस, Yes, ma'am. यस. ओके, गुड. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिज. We called it is the ridge
regression also. Okay, that come under the regularization. Okay, we also called it a L2 regularization. Ridge is the category of the regularization. We called it also L2 regularization. L2 regularization भी कहते हैं. अब देखो, now listen carefully. Again, we start with our linear regression. Linear regression जो है ना हमारा बेसिक एल्गोरिदम है, वो तो हर जगह यूज होना ही होना है, ठीक है ना. अब सपोज मैं लीनियर रिग्रेशन यूज कर रही हूँ और लीनियर रिग्रेशन के अंदर डाटा सेट अवेलेबल है मेरा, ये डाटा सेट सारा अवेलेबल है. ओके, सपोज दिस इज माय एक्सपीरियंस और दिस इज माय सैलरी. एज माय एक्सपीरियंस इंक्रीज माय सैलरी इंक्रीज. ओके, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे सैलरी इंक्रीज होती जाती है. यस, एग्री. और सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज द बेस्ट फिट लाइन अकॉर्डिंग टू डाटा, लीनियर रिग्रेशन के अकॉर्डिंगली. और ये जो पॉइंट्स होंगे ये आप कह दोगे कि एरर्स है, एरर है, ठीक है. और एरर कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है सम ऑफ मीन स्क्वायर्स निकालते हो आप. आई इज इक्वल टू 1 to n y माइनस y हैट द स्क्वायर. यस और नो? ये सबको पता है. इसको हम कॉस्ट फंक्शन भी कहते हैं. वी आल्सो कॉल्ड इट कॉस्ट फंक्शन. वी आल्सो कॉल्ड इट सम ऑफ स्क्वायर मेथड. यस, एग्री विद मी? अभी तक जो मैंने बताया वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस थिंग. यस, shall I move to the next thing now? Sure, ma'am. Yes, okay. Yes, ma'am. Now you can see ये डाटा सेट है, इसमें हमने इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर दी. अगर सपोज मैंने डाटा सेट के अंदर सिर्फ अभी फॉर समझाने के लिए 2 पॉइंट्स ले लिए, 2 पॉइंट्स ले लिए और 2 पॉइंट्स लेने के बाद मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है. तो इसमें बायस क्या होगा, हाई होगा कि लो होगा? लो होगा. हाई होगा कि लो होगा? यस, टेल मी. बायस हाई होगा कि लो होगा? अगर मेरा सारे पॉइंट्स डाटा मैच कर रहे हैं तो क्या होगा? लो होगा. मैम लो होगा. लो होगा. लो मतलब क्या होता है नेग्लिजिबल कि जीरो मेरी एरर आ रही है. यस और नो? जी. जीरो एरर मतलब कि ये वैल्यू जीरो है मेरी, इसका मतलब है ये मेरी जीरो वैल्यू है. यस और नो? यस मैम. ओके, नाउ एज यू नो कि अगर मेरा कोई पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है, तो देयर विल बी द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग. देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग. अंडर फिटिंग साइड. नो नो नो, देखो बेटा, मैंने टेस्टिंग के टाइम पे डाटा जो मेरा सारा जो है वो मैच कर रहा है. सॉरी, ट्रेनिंग के टाइम पे जो डाटा इनपुट किया वो मैच कर रहा है. यस, तब कर रहा. लाइन फिट हो रही है. मैंने 2 पॉइंट्स लिए, दोनों पॉइंट्स को मैच कर रहा है. यस. ठीक है, मैच कर रहा है. अब ड्यूरिंग द टेस्टिंग मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले रही हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे ले रही हूँ, कुछ इस तरह ले रही हूँ, किसी इस तरह ले रही हूँ, तो वो ये लाइन तो फिट ही नहीं हो रही. इन दिस केस द एरर विल बी द अंडर ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम आ गई. यस और नो? यस यस. मैंने डाटा सेट लिया 2 का, पहले मैंने डाटा सेट लिया 2 पॉइंट्स का और उसके अकॉर्डिंगली मैंने बेस्ट फिट लाइन बना दी. वो बेस्ट फिट लाइन दोनों डाटा सेट पॉइंट्स को मूव कर गई. नाउ ड्यूरिंग द टेस्टिंग मैंने पॉइंट्स ले लिए यहाँ पे. आई हैव टेकन द पॉइंट्स हियर, आई हैव टेकन द पॉइंट्स हियर. तो ये तो लाइन मैच ही नहीं हो रही अब, एंड दिस इज कॉल्ड ओवरफिटिंग. नाउ ड्यूरिंग द टेस्टिंग इफ क्या अगर हमारी एरर आ जाए, अक्कर हो जाए, तो हमारी ओवरफिटिंग प्रॉब्लम आती है. यस और नो? यस. समझ रहे हो बात मेरी? अब
यही प्रॉब्लम को, जो ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम मैं बोल रही थी ना, अंडरफिटिंग इज वन प्रॉब्लम, ओवरफिटिंग इज अ प्रॉब्लम दैट अकर्स, है ना। तो इन प्रॉब्लम्स को सबसे पहले अगर मैंने अपनी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ओवरफिटिंग प्रॉब्लम को रिड्यूस करना पड़ेगा। आई हैव टू रिड्यूस माय ओवरफिटिंग प्रॉब्लम। कि ये है कि ट्रेनिंग टाइम मैंने जो सिखाया वो आपको अच्छी तरह आ गया, पर टेस्टिंग के टाइम आप आंसर ठीक नहीं लिख रहे हो, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो वी वांट टू रिड्यूस दैट थिंग। To reduce that thing, we use the concept of the ridge regression. If we want to reduce the overfitting problem, whenever we want to reduce the overfitting problem, we use the concept of the ridge regression. Okay? अगर ये प्रॉब्लम रिड्यूस हो गई, ऑटोमेटिकली मेरी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी और मेरी कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगी। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कम होगी, चलो उसको आगे जाके डिस्कस करते हैं, लास्ट में करेंगे जब हमारा ये सारा समझ लग जाएगा आपको। क्लियर हुआ कि हम रिज रिग्रेशन क्यों यूज कर रहे हैं? यस Yes. यस क्लियर कि रिज रिग्रेशन इज बेसिकली यूज्ड टू solve the problem of overfitting or to reduce the problem of overfitting, we use the ridge regression. अब ridge regression में क्या करते हैं हम, जो हमारा सम ऑफ एरर्स आ रही हैं, ये एरर्स है ना, ये एरर्स अक्कर होनी है ना, ड्यूरिंग द टेस्टिंग टाइम। दिस एरर प्लस we will take the lambda, lambda is the value that varies from the 0 to any positive value, कोई भी 0 से लेके कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लैम्डा की हो सकती है। ओके, दिस इज अ लैम्डा ब्रैकेट मल्टीप्लाई स्लोप स्क्वायर। This is the formula of the ridge regression whenever we want to reduce the problem of overfitting. Sum of the squares, ये square errors का, इसको हम cost function भी कहते हैं, this is cost function plus lambda that varies from the 0 to 1 and into the slope square, This is the formula of the ridge regression. मैं इसको neatly भी लिख देती हूँ एक बार दोबारा। The formula again summation 1 से लेके n y, ये आप सबको पता है, and then afterwards उसके बाद क्या करना है हमने, प्लस लैम्डा एंड स्लोप। यस, स्लोप कैलकुलेट करने का आपको फॉर्मूला सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन में बता दिया हुआ क्या होता है। ओके, ये भी आपको समझ लग गया है। लैम्डा की वैल्यू जो है 0 से लेके पॉजिटिव वैल्यू कोई भी हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू। ओके, ये हमारा हो गया ये चीज, ये मेरा फॉर्मूला है। अब हम ये फॉर्मूला लगा क्यों रहे हैं, पहली बात तो ये लगाना जरूरी क्यों है, स्लोप की स्क्वायर है, ये फॉर्मूला लगा क्यों रहे हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूजिंग द ridge regression to remove the or to reduce the problem of overfitting, we use the ridge regression. Now basically क्या होता है, suppose मैंने एक लाइन ड्रॉ की like this, आप एक वर्ड टर्म स्टीप स्लोप, एक स्टीप स्लोप वर्ड होता है ना, स्टीप स्लोप, ये क्या मतलब है, स्टीप वर्ड, if I say steep slope, yes, क्या होगा वो, क्या होता है भाई, yes, anyone बताओ, स्टीप स्लोप क्या होगा, देखो बच्चे, मैंने सपोज स्टीप स्लोप करती, जैसे हमारा ये एक डस्टर है, ओके, स्लोप लाइक दिस स्लैंटिंग, स्लोप इज लाइक स्लैंटिंग। अगर स्लैंटिंग थोड़ी स्ट्रेट हो, सपोज ऐसे ऐसे मैंने लिखा है कि ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये मेरी सैलरी है, 0, 1, 2 years, 3 years, ठीक है,
और अब मैंने बना दिया लाइक दिस, स्लोप मेरी ये है। अब 1 से 2 के बीच में ये जो गैप है, सैलरी का इंक्रीज होना वो ज्यादा है। जितनी ज्यादा स्टीप है, ये देखो जितनी ज्यादा स्टीप है उतना ज्यादा हमारा ये इंक्रीज हो रहा है। ये चीज क्या इंक्रीज हो रही है, जैसे मैंने स्टीप को, अपनी स्लोप को थोड़ा सा एंगल चेंज किया, तो यू कैन सी स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस ये तो डिफरेंस कितना आ गया सिर्फ। हाँ, पहले केस में कितना था, समझ लगे कि मींस जब अगर मेरी स्लोप स्टीप है तो मेरे एरर्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं। एज माई स्टीप रिड्यूस, जैसे जैसे मेरी स्टीप रिड्यूस होती जाएगी मेरी एरर भी कम होती जाएगी, और वो जीरो नहीं होती, दैट कैन बी नियरेस्ट टू द जीरो बट नेवर बी जीरो। क्लियर, समझ लगी मेरी बात? स्लोप की बात समझ लग गई कि नहीं लगी? यस और नो? यस मैम। क्लियर हुआ कि अगर मैंने एक स्लोप जो है, मैं रिपीट कर रही हूं, सपोज मैंने एक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिया और उसमें यहाँ पे ले लिया एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मीन्स 0, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, एंड हियर आई हैव रिटन द सैलरी। जैसे 3 लाख हो गई, यहाँ पे 10 लाख हो गई, 10 लाख हो गई, 10 लाख हो गई, यहाँ पे 15 लाख हो गई, है ना, और मोर यहाँ पे 20 लाख हो गई। और अगर मैंने स्टीप ऐसे बनाई है, सपोज माय लाइन इज लाइक दिस, माय डाटा सेट इज लाइक दिस। अब यू कैन सी अगर मैं 1 साल का है तो मेरा ये, और 2 साल पे मेरा ये लाइन आ रही है, तो मेरी एरर कितना आ रहा है यहाँ पे, दिस इज इतना इंक्रीज हो रहा है मेरा। ठीक है, अगर इसी लाइन को मैं थोड़ा सा भी रिड्यूस कर दूंगी ना, तो आपका ये गैप जो है, ये देखो ये यहाँ पे आ गया, और दूसरा कहाँ है, ओनली द लिटिल बिट डिफरेंस। ठीक है ना, तो हमारा मेन मोटिव है क्या है, हमने एरर जो हमारी ट्रेनिंग टेस्टिंग के टाइम पे आ रही है उसको रिड्यूस करना है। तो वो रिड्यूस कैसे होगी, बाय मूविंग द लाइक दिस, मूविंग, और स्लोप को हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है बाय रिड्यूसिंग द स्लोप। डाउन करेंगे, हाँ डाउन को आपने डाउन की ना वो लाइन, तो हाँ तभी हाँ 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 हाँ, तो डाउन तो ये साइड देखो, करेंगे, डाउनवर्ड। ये देखो ना, हमारी स्लोप जीरो कैसे है, ये लाइन है जब ऐसे हो जाती है दैट इज द स्लोप जीरो। इसका क्या मतलब है, स्लोप जीरो मेरी, यस, और कभी भी रीज के अंदर स्लोप जीरो नहीं होती। पहली बात तो दैट कैन बी लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन आएगी, बेस्ट फिट लाइन बनानी है जो बन जाए, जिसमें एरर्स भी कम आए। ठीक है ना, दैट कैन बी लाइक दिस, समझ लग गई? यस, तो वो चीज है, उस मेन मोटिव हमारा वही है कि जो हमारी इतनी एरर्स हैं उसको रिड्यूस कैसे करें। तो उससे एरर रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, स्लोप को बिल्ड करना शुरू कर दिया। ओके, दिस इज नाउ, जैसे सपोज पहले एक डाटा सेट लिया मैंने, लाइन ड्रॉ की, ठीक है, इस केस में एरर कितना है मेरा, जीरो। एरर कितना, जीरो। लेट अज्यूम कि लैम्डा की वैल्यू जो है 1 है, गिवन है। लेट अज्यूम कि लैम्डा की वैल्यू मेरी गिवन है, ठीक है। और अगर मैं स्लोप यहाँ पे ले लेती हूँ 2, अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 2 का स्क्वायर, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 4। मेरा क्या आंसर आएगा, 4। कि मेरी इतनी एरर आ रही है, मेरा इतना एरर आ रहा है, ठीक है। इस वैल्यू को, जैसे हमने ग्रेडियंट डिसेंट में जो वैल्यू मेरी आ रही है, एरर आ रही है, उस एरर को क्या करना है मैंने, रिड्यूस करना है। इस एरर को क्या करना है मैंने, रिड्यूस करना है। मींस नेक्स्ट टाइम जो ट्रांजैक्शन करूं वो 4 की जगह 2 आए, और इट कैन बी और 1 आए, 3 आए, डिपेंड्स ऑन सपोज। नाउ अगर जब मैंने इसी डाटा सेट के ऊपर लाइन ड्रॉ कर दी लाइक दिस, स्लोप टिल्ड किया, ठीक है, और स्लोप की वैल्यू मैंने कम की है। अगर स्लोप की वैल्यू मैंने यहाँ पे कम की है 1 फॉर द सेम वैल्यू ऑफ लैम्डा,
for the same value of lambda, then answer will be 1. और अगर एरर आ रही है, एरर की जितनी वैल्यूज आ रही हैं लाइक 1.0, अगर वैल्यूज ले रही हूँ, ये वैल्यूज गिवन होती हैं, प्रोवाइडेड होती हैं, जब फाइंड आउट करते हैं हम, ये फाइंड आउट कैसे होता है, हमारे पास फॉर्मूला है, y का आपको पता है, y नॉट का वैल्यू पता है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली फैच हो जाता है। आपके लिए एग्जाम के लिए सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि रिज क्या होता है, रिज का फॉर्मूला क्या है, ओके, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग दिस। नाउ यहाँ पे कितना है 1.0 और 1 2, अब कितना हो गया रिड्यूस, कि whenever we reduce the slope it will reduce our error of the overfitting, जो एरर हमारी ओवरफिटिंग में प्रॉब्लम अक्कर होती है ड्यूरिंग द टेस्टिंग, वो रिड्यूस हो जाती है हमारी रिज कंसेप्ट के साथ। समझ लग गया सबको? यस और नो? Yes, ma'am. Yes. यस, ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर थिंग। अब मैं बात कर रही हूँ अबाउट द लैम्डा। सेम में लैम्डा, लेट्स if I take the value of the lambda 0 point this, there will the positive values, there will be the negative values, okay, this is a 0. Now second, if I will take the another value of lambda that is 1, और यहाँ पे lambda ले देती हूँ, lambda 1 पॉइंट की वैल्यू lambda की वैल्यू है, वेट स्टूडेंट, ये नोट डाउन करो आप। यस, बोलो बेटा, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? ओके स्टूडेंट्स, नाउ लिसन, आप ये डायग्राम में क्या किया मैंने कि मैंने लैम्डा की वैल्यू ली है, इनिशियलाइज जो फॉर्मूला है हमारा उसमें डाल दी 1.01 और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू ले ली, लैम्डा इज इक्वल टू 1।
ये जो लाइंस ड्रॉ की है ना मैंने, दीज आर बेसिकली द फीचर्स. फीचर्स मीन्स लाइक सपोज मेरे पास दिस इज माय इक्वेशन, दिस इज माय इक्वेशन है. हमारी लीनियर रिग्रेशन भी यूज कर सकते हैं ना, रिग्रेशन का एक फॉर्मूला है जिसके अंदर दिस इज वन वैल्यू, दिस इज अनदर वैल्यू, दिस इज अनदर वैल्यू, दिस इज अनदर वैल्यू. यू कैन सी नाउ यहाँ पे 39 है. ओके, ये 3 वैल्यूज आपके पास प्रोवाइडेड है. ये क्या है बेसिकली, ये क्या है मेरा एक फीचर, ये क्या है मेरा दूसरा फीचर, तीसरा फीचर, ये सारे क्या है मेरे फीचर्स. नाउ जिस फीचर की वैल्यू सबसे ज्यादा है उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा है. यस, सपोज कि मैंने एक रिकॉग्नाइज करना है, ये मार्कर ही रिकॉग्नाइज करना है. मशीन को, मॉडल को बताना है कि अगर वो कोई भी इमेज रिकॉग्नाइजेशन है वो ये रिकॉग्नाइज करके बताए कि क्या चीज है ना. तो उसको कैसे पता लगेगा? थ्रू द फीचर्स. सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसमें? इसकी पिन, इसका वे ऑफ ये, ठीक है ना, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन ये हो गई, इसकी जो निब है, ये जो मेन फीचर्स हैं. फीचर्स तो सारे, ये कैप भी एक फीचर है, ये निब भी एक फीचर है, ये पूरा स्टाइल भी एक फीचर है. ठीक है, तो सबसे मेन फीचर उसकी व्यू कैसे दिख रहा है वो. ठीक है, ये जो मेन फीचर, तो जो मेन फीचर है उसकी वैल्यू क्या होती है? सबसे ज्यादा, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा. तो हमें क्या करना होता है कि इन फीचर्स की वैल्यू को कम करना है ताकि मेरी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो. कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी, ठीक है ना. तो वो हम कैसे कर सकते हैं? इन द केस ऑफ रिज, वो लैम्डा की हेल्प से. लैम्डा की वैल्यू अगर मैंने 0.01 ली है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि सपोज एक फीचर था यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो फीचर्स की क्या हो गई, जैसे जैसे मैंने लैम्डा की वैल्यू ली 0.1, उसमें जो रिक्वायर्ड फीचर्स हैं उसकी वैल्यूज क्या हो गई? रिड्यूस्ड. जो ये इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, 1.2 वैल्यू जो है 0.7 में रिड्यूस हो गई, 20 वैल्यू रिड्यूस टू 2, 39 value reduced to the 5.3 by just inserting the lambda value in that formula. उस फॉर्मूले में ये वैल्यू इंसर्ट करने पे मेरा जो फीचर्स है वो निग्लिजिबल नहीं हुए, हम कोई छोड़ नहीं रहे. वी आर नॉट रिमूविंग एनी फीचर्स, फीचर्स सारे, पर उसकी वैल्यू की, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है कि उसके बिना भी काम चल सके, उससे हमारी स्पीड इंक्रीज हो सके, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा. सिमिलरली अगर मैंने उसके, अगर 0.01 लैम्डा की वैल्यू तो हमारे फीचर्स 10 तक है. अगर उसकी वैल्यू मैंने इंक्रीज की है तो मेरे फीचर्स की रिक्वायरमेंट कितनी हो गई? 8, 7 लाइक दिस. बट इंप्लीमेंट सारे फीचर्स होंगे, बट इंप्लीमेंट होंगे सारे फीचर्स. समझ लग गया सबको? यस, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? हमने अभी तक, जो मैं रिपीट कर रही हूँ, अभी तक तो डिस्कस किया, पहली बात की कि रेगुलराइजेशन क्या होती है. रेगुलराइजेशन बेसिकली हमारा मेन मोटिव होता है कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करनी है मैंने, और कॉस्ट भी जो है वो भी रिड्यूस करनी है. कॉम्प्लेक्सिटी भी कम करनी है अपने और कॉस्ट भी रिड्यूस करनी है. कॉम्प्लेक्सिटी मतलब देखो ये फीचर है, ठीक है, एक फीचर है और उसकी वैल्यू कितनी है? 39. यहाँ पे 39 दी है. इट कैन बी इन द लार्ज लैक्स, कितने वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, ठीक है ना. अभी के लिए तो आपको इतना दी है, इनको रिड्यूस करना है ताकि मेरी स्पीड, कॉस्ट कम हो सके. तो उसको करने के लिए मुझे चाहिए होता है लैम्डा. और लैम्डा कहाँ पे यूज करते हैं? इन द रिज रिग्रेशन. वी यूज इट इन द रिग्रेशन. और रिज रिग्रेशन तभी ये यूज होगा, क्यों करेंगे? क्योंकि हमने ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को रिड्यूस करना है. अगर ओवरफिटिंग की रिड्यूस हो गई, ट्रेनिंग टेस्टिंग के टाइम पे कोई एरर नहीं आएगी, ऑटोमेटिकली मेरा प्रोडिक्ट भी अच्छा करेगा, कॉस्ट भी डिक्रीज होगी और कॉम्प्लेक्सिटी भी डिक्रीज होगी. समझ लग गया कि नहीं लगा? यस, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन regarding the regression L2 regularization? We called it L2 regularization. Any doubt, any question? Yes, students. मैम लैम्डा वाला एक्सप्लेन कर दो प्लीज. Yes, Tanvi, lambda. मैम लैम्डा वाला कंसेप्ट नहीं समझ लगा. ये लैम्डा का कंसेप्ट नहीं लगा?
देखो बेटा, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हमें जब भी रेज रिग्रेशन यूज करनी है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एरर्स, और वी कैल कॉल कॉस्ट फंक्शन प्लस कॉस्ट फंक्शन प्लस लैम्डा स्लोप स्क्वायर। यस, कॉस्ट फंक्शन आप सबको क्लियर है। ये स्लोप क्यों लगाई है, इसको स्क्वायर क्यों किया है, वो मैंने आपको बता दिया कि जैसे जैसे हम स्लोप को डिक्रीज करते जाएंगे ये हमारा एग्जीक्यूट करता जाएगा, उतना हमारा एरर रिड्यूस होता जाएगा और ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम रिड्यूस होती जाएगी। अब ये लैम्डा क्यों लगाया है, ये लैम्डा इसलिए लगाया है कि मेरा मेन मोटिव क्या है, ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को रिड्यूस करना है, एरर को कम करना है। एरर को कम करके क्या करना है, मैंने अपनी कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है और कॉस्ट भी कम करनी है। ठीक है, अब लैम्डा जो होता है, मेरे जो फीचर्स हैं, फीचर्स की क्या है कि जैसे ये एक फीचर है मेरे पास, ये एक फीचर है, मैंने यहाँ पे ये है मेरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है किसके ऊपर, इन सब के ऊपर। सपोज डिपेंडेंट वेरिएबल की मैंने देखना है कि कैट, और वी से दैट हम बात कर रहे हैं, जैसे हम बात करते थे, हमने की थी बात सैलरी की, यहाँ पे सैलरी, यहाँ पे एक्सपीरियंस है, तो सैलरी डिपेंडेंट है किसके ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर। यस और नो, यस सैलरी डिपेंडेंट है एक्सपीरियंस के ऊपर। तो एक्सपीरियंस में फीचर्स है कि हर एक चीज में, अगर सपोज मैं कहती हूँ कि मैंने एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस में भी ये है ना, किसी को 1 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो जैसे जैसे हमारी वैल्यूज इंक्रीज होती जाती है, हमारी सैलरी भी इंक्रीज होती जाती है, वो चीज है, ये लाइन से इस हमारा ये ड्रॉ होता है। अब मेन मोटिव हमारा क्या है कि जब मैंने अब बात कर रही थी कैट, ठीक है ना, अब मैंने मशीन को बोल दिया कि भाई ये इमेज है कैट की, अब कैट कैसे बनाए, चलो जैसी भी बन जाए मेरे से, ठीक है, सपोज ये कैट है, ठीक है, ये कैट है, और मशीन को बोले मॉडल बता कि ये कौन सा एनिमल है, मॉडल प्रिडिक्ट कर कि कौन सा एनिमल है, डॉग है, कैट है, कि कौन सा एनिमल है। ठीक है, अब एज यू नो कि मॉडल तभी प्रिडिक्ट कर सकता है अगर उसके पास फीचर्स होंगे। फीचर्स मींस एक हमने फीचर दे दिया कि उसकी आईज है, एक फीचर दे दिया कि उसके 4 लेग्स हैं, ठीक है, वो कैट के हेयर्स जो है ऐसे हैं, ठीक है, उसकी आईज जो है, या कोई भी जो फीचर्स हमारे यहाँ से, ठीक है, जो जो कैट्स के रिलेटेड फीचर्स हैं वो सारे प्रोवाइड करती है। अब जो फीचर्स हैं वो एक चीज को लेके लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स कैन बी देयर। अगर मैं कैट को पूरी अच्छी तरह प्रिडिक्ट करना शुरू कर दूं, कैट बनाना शुरू कर दूं, ठीक है, ये एक सर्कल सा बनाया, उसकी डॉट बनाए, पहले एक सर्कल सा हो कैट का फेस, डॉट 2 आ गई उसकी आईज की तरह, ये उसका नोज हो गया, मैन का बना देती हूँ, मैन मेरे लिए इजी ज्यादा ना, ठीक है, ये मैन का हो गया, ये उसके लिप्स हो गए लाइक, ठीक है, एक ये आई ईयर्स हो गए, ओके, ये मतलब जैसे उसका बॉडी पार्ट्स हो गए, ये सारे क्या है, एक एक थिंग क्या है हमारा, एक एक फीचर है, these are all the features, these are all the features, and this is one feature, this is two another feature, this is another feature, and this is another feature, मल्टीपल फीचर्स हैं। अब इतने ज्यादा फीचर्स, मॉडल को देखने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, यस टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना, और उन फीचर्स के भी आगे सब फीचर्स होंगे। अब एक हैंड है, एक एनिमल या एक पर्सन की बात ही कर रहे हैं हम, हर एक पर्सन के हैंड की वे अलग है, रिप्रेजेंटेशन अलग है। अब मेरा हैंड है, आपका हैंड है, उसमें रिप्रेजेंटेशन अलग है, उसके भी अगर सब पार्ट्स हो गए, नंबर ऑफ वैल्यूज हो गई। जैसे मैं कहती हूँ कि ये एक हैंड है, ये एक मैन का हैंड का फीचर है, उसकी वैल्यू क्या है कि उसके आगे कितनी वैल्यूज है, 1000 और इमेजेस प्रोवाइडेड है मेरे पास। ये एक हैंड फीचर है, उसकी 1000 इमेजेस प्रोवाइडेड है मेरे पास। ये मेरे पास लेग फीचर है, उसकी 20 और मैं कह सकती हूँ 20 इमेजेस प्रोवाइडेड है।
एक फीचर की 39 इमेजेस प्रोवाइडेड है, एक फीचर की 20 इमेजेस प्रोवाइडेड है। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल आपको बताने के लिए कि ये चीज है। एक है हमारे पास आईज फीचर है, उसकी 1.2 वैल्यू फीचर मतलब कि डाटा प्रोवाइडेड है मेरे पास। अब इतना डाटा हो, अगर सपोज मैं यही 1000 में लिख लूं, 10,000 में लिख लूं, लैक्स में लिख दूं, तो एक मशीन को प्रिडिक्ट करने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? यस टेल मी। यस मैम। लगेगा, यस मैडम लगेगा। टाइम लगेगा। अब उस टाइम ऐसे तो हमारा मशीन मॉडल जो है वो स्लो वर्क करेगा, उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, ये लैम्डा की वैल्यू जो है ना वो इंक्रीज कर लेते हैं, लैम्डा की वैल्यू को सेट कर लेते हैं। जैसे जैसे मैं लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करती जाऊंगी, मेरे जो फीचर्स हैं उनकी वैल्यू क्या होती जाएगी, रिड्यूस्ड। रिड्यूस मतलब कि जो जैसे जो कैट दिखेगी उसके रिक्वायर्ड जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो ही रिप्रेजेंट होंगे। लेस की एक हैंड है, उसकी 39 इमेजेस प्रोवाइडेड हैं, पर जो रिप्रेजेंटली करंटली मैं इमेज दिखा रही हूँ मैन की, वो किसके साथ मैच कर रही है, ओनली 5 हैंड्स। उसकी रिलेवेंस किसके साथ है, 5 हैंड्स के साथ। तो वो मेरा एक थिंग हो गई। वो कैसे हुई, विद द हेल्प ऑफ लैम्डा, with the help of lambda. As my lambda value increases, मेरे फीचर जीरो नहीं होंगे, पर इसकी वैल्यू क्या है, लाइक द कम होती जाएगी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ हाँ, यस मनी। मैम जैसे फॉर एग्जांपल हमने हैंड फीचर लिया, हम्म हैंड के आगे सब फीचर्स होंगे, हम्म तो हम इसको आप जैसे कह रहे थे ना कि मैम इमेजेस हैं, जैसे 20 इमेजेस हैं, तो हम इसको 20 सब फीचर लेके चले कि उसके सब फीचर कम कर दें। यस, हम क्या कर रहे हैं कि जहां ताकि मशीन इजीली अंडरस्टैंड कर सके। जी जी, जितने सब फीचर कम होंगे उतनी जल्दी कंप्यूटेशन होगी। यस एग्री है, यस जी जी, वही वही पूछना है, जैसे ये वैल्यू समझ हम। लग गया सबको? यस, दैट इज द पॉइंट। जी जी, ओके। क्लियर टू एवरीवन? यस 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 मैम। yes, okay, okay, let's have one poll before moving to next topic. I am going to launch the first poll. Poll is visible? Yes? यस मैम। Okay, start then. जो अभी डिस्कस किया ना उसके रिगार्डिंग यही
Yes, hurry up. Okay, hurry up, students. Okay. Okay, what will be the answer of first question? इसमें क्या है कि अगर मेरा लैम्डा की वैल्यू, इफ माय लैम्डा वैल्यू इज हाई, अगर मेरे लैम्डा की वैल्यू हाई होगी तो देन यस एनीवन, मींस लैम्डा की वैल्यू हाई होने पे मेरे बायस और वेरिएंस पे क्या डिफरेंस पड़ेगा? यस, our main objective while using the ridge regression is to reduce the problem of overfitting. Yes. Yes, Yes. our ma'am. main objective is to reduce the problem of overfitting. Yes, ma'am. Yes, overfitting reduce करने पे variance क्या होती है, लो के हाई? लो लो होती, लो होती है. यस, तो अब वेरिएंस ऑप्शन किसमें लो है? कौन कौन से में लो है? एक ए में और सी में सी में. ठीक है, इन दोनों में से कोई आंसर होगा. सेकंड वे ना, अब बायस की बात आ गई. अब बायस जो है, लो का मतलब है
Bias low means नो एरर, no error. Bias का मतलब low का मतलब क्या है? नो एरर, नो एरर, मैंने आपको दिखाया भी था कि जब भी हम रिज रिग्रेशन कर रहे हैं, मेरा डाटा सेट लाइक दिस था, वो लाइन पहले ऐसे ड्रॉ की, फिर मैंने स्लोप को क्या किया, थोड़ा सा स्लांट किया। अब डाटा पॉइंट्स तो यहाँ पे ही है, स्लोप स्लांट हो रही है, तो ट्रेनिंग टाइम पे एरर हो सकती है, पर मेरे जो ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो रही है। सो द आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी। As I increase my lambda, the bias will be high and the variance will be low. ट्रेनिंग के टाइम मेरी एरर आ जाए, वो मेरे को भी पता है और आपको भी पता है, वो रिजॉल्व कर सकती हूँ मैं, यस और नो। बट ड्यूरिंग द टेस्टिंग टाइम एरर नहीं होनी चाहिए। अगर एरर उस टाइम पे आ गई मींस मुझे सारा रिवाइंड करके चेक करना पड़ेगा। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? yes ma'am, Now let's move to second. If the value of lambda very small, अगर lambda की वैल्यू वेरी स्मॉल हो जाए तो देन द आंसर विल बी, उससे क्या हो जाएगा, हाई है तो उससे उल्टा ही हो जाएगा, यस मैम, yes or no? The answer will be B. The answer will be B. Clear or not? Yes. Any doubt? Any question? Yes, students. Any doubt? Any question? no ma'am, समझ लग गया? yes ma'am, Yes. Okay. Now let's move to the next thing now. Now next is okay. दोनों क्वेश्चन समझ लग गए सबको? हाँ जी मैम, Clear. Good. Okay. Now let's move to the next thing, that is of a lasso regression. Next comes the lasso regression. लासो और रिज में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। पहले हम फॉर्मूले में बात कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा इन द केस ऑफ कॉस्ट फंक्शन, सेम प्लस लैम्डा मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप। उसका कोई स्क्वायर नहीं है, ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द लासो। लासो का फॉर्मूला ये है। The main motive of using the lasso regression, पहले में जो रिज था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लासो इज टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग। ओके, बट द सॉरी आई रिपीट, मैं दोबारा बोलती हूँ, गलत बोला गया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिज रिग्रेशन इज टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग। ओके, lasso also solve the problem of overfitting, but also reduce the features, but also remove the features. अब देखो, ध्यान से देखना, सेम इक्वेशन है, विजिबल है सबको? यस, सबको विजिबल है? यस मैम, यस, सेम इक्वेशन है, सेम डाटा सेट मेरे पास अवेलेबल है। रिच में क्या हो रहा था कि मेरी वैल्यूज जो थी, मेरे फीचर्स थे, वो रिड्यूस हो रहे थे, कम हो रहे थे, पर खत्म नहीं हो रहे थे। अगर एक मार्कर है, इसके जितने भी फीचर्स है ना, चाहे वो फाइंड आउट करने में हेल्प कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सारे मेंशन कर रहे थे हम रिज में। पर लासो में क्या कर सकते हैं हम, वी कैन रिड्यूस द फीचर। हम उतने फीचर ले लें जितने हमें रिक्वायर्ड है एक चीज को प्रेडिक्ट करने के लिए। जैसे सपोज मेरे पास ये डाटा 1.2 का, इसमें फीचर्स थोड़े हैं, 3-4 फीचर्स हैं, जिससे कुछ मैं ज्यादा गेन नहीं कर पा रही, प्रेडिक्ट नहीं कर पा रही मॉडल। वो मैं रिमूव कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, जिससे मेरी प्रेडिक्शन इतनी अच्छी हो ही नहीं रही। लाइक डाटा सेट है 20 का, 20 में प्रेडिक्शन क्या 10-20 है, उससे भी मेरी आंसर प्रेडिक्ट अच्छी तरह नहीं हो रहा। जितनी मतलब कि जिससे मैं रिमूव करके भी मेरा काम चल सकता है, तो वो हम यूज कर सकते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ लासो। लासो क्या करेगा, जो हमारी प्रेडिक्शंस फीचर्स ज्यादा हेल्पफुल नहीं है हमारी फाइंड आउट करने में,
उसको क्या कर देते हैं हम 0, we set it to the 0, 20 set to the 0। सबसे ज्यादा कितनी वैल्यू थी 39, which is a mandatory। जिसमें डाटा सेट ज्यादा है, जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो तो हम 0 नहीं कर सकते, पर जिससे हमारा काम चल सकता है उसको 0 कर दिया कि मूव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ये मेरा एक टेबल है, इसमें कितने हैं 10 फीचर्स है, 10 फीचर्स है, फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, फीचर 4, फीचर 5, फीचर 6। पहले 4 फीचर्स जो हैं दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर मी, अकॉर्डिंग टू दैट मशीन प्रेडिक्ट इजली। वो 4 फीचर से डाटा सेट मेरे पास इतना ज्यादा है कि मैं इजिली प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। बाकी जो 6 फीचर्स हैं, अगर मैं उसको रिमूव भी कर दूं तो मेरा काम चल सकता है, यस और नो? अगर मैं सिर्फ बोल दूं कि आपने बताना है, एक इमेज से प्रेडिक्ट करना है कि वेदर दिस इज एनिमल और दिस इज द ह्यूमन बीइंग। सपोज बाय वन इमेज, एक इमेज प्रोवाइड कर दूं मशीन को और उसको बोल दूं कि प्रेडिक्ट वेदर दिस इज द ह्यूमन बीइंग और द एनिमल। तो उसमें फीचर्स में क्या है, ह्यूमन बीइंग के लिए मुझे 2 लेग्स बतानी है, 2 हैंड्स बताने हैं, दैट इज, और इस तरह का वे बताना है, ठीक है ना? 3 फीचर्स के साथ चल गया मेरा काम। एनिमल में मैंने जाना है कि इस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, उसके 4 लेग्स होती है। मीन्स कि अगर इस तरह का डाटा सेट में से ये प्रिडिक्शन करनी है तो मुझे फीचर की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो मैं उस टाइम पे क्या कर सकती हूँ, फीचर सिलेक्शन। आई कैन रिड्यूस द फीचर्स। अगर फीचर रिड्यूस कर दी, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है तो कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगी। जितने कम फीचर चाहिए होंगे उतनी कॉस्ट रिड्यूस, और वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लासो। लासो विल हेल्प टू reduce the problem of overfitting, as well also help in feature selection, also reduce the features। कैसे reduce करते हैं? By just increasing the value of lambda, by just increasing the value of lambda। as we increase, यहाँ पे 0.05 है, जो फीचर था उसकी वैल्यूज यहाँ तक पहुंच गई। नेक्स्ट टाइम जब मैंने लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा लिख लेना यहाँ पे लैम्डा लिख लेना, लैम्डा की वैल्यू 1 की तो मेरे यहाँ पे जो फीचर्स थे वो क्या खत्म हो गए, दैट 0 अज्यूम हो गया। एज आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, जो फीचर्स हमारे बहुत कम है, जिसकी रिक्वायरमेंट कम है, वो क्या हो गए निग्लिजिबल, और वो क्या हो गए फिनिश्ड। क्लियर? दैट इज अबाउट द लासो। द फॉर्मूला इज सेम, concept is same, just we use the concept of the feature selection in this case, in the case of lasso regression, and this is called the L1 regression। this is called the L1 regression। उसको L2 कहते हैं और इसको L1 कहते हैं। yes, any doubt, any question regarding this regularization? Any doubt, any question regarding the concept of the regularization by any student? मैम इसे L1 भी कहते हैं, L1 ही है? yes yes yes, उसको L2 कहते थे ना हम। Yes. that is called L2 regularization, this is called L1 regularization। Okay. okay, clear? Yes ma'am। समझ लग गया सबको? okay, now I'm मैम going to, मैम मैं ये पोल फॉर्मूला बताना मैम, ये कॉस्ट फंक्शन प्लस पोस्ट वही सेम है। मैंने वहां पे हम स्क्वायर ले रहे थे, स्क्वायर नहीं लेना, और उसमें हमने इसमें मैग्नीट्यूड ले लिया। इसमें क्या ले रहे हैं हमें, ओनली मैग्नीट्यूड, मींस ओनली पॉजिटिव वैल्यू। ओके ओके इसमें कोई स्क्वायर नहीं आ रहा, ओके बाकी कंसेप्ट सारा सेम है। ओके ठीक है, ओके। अब मैं 2 पोल्स शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। पहला तो हम प्रीवियस लेक्चर में जो किया था, जल्दी से मुझको बता दो उसका आंसर। टेल मी द आंसर ऑफ दिस। आई एम गोइंग टू लॉन्च द पोल। A is the sigmoid function। What is the formula of sigmoid function? क्या फंक्शन का फॉर्मूला था? किसी को याद हो? 1 +
1 divided by e की power minus y 1 plus e e raised to power minus y y. What is y? y is line. Linear regression line. Okay, this is the segment function. ये हमारा क्या है? Segment function. And this segment function is also called the activation function. Activation function. This function also comes under the activation functions. जैसे हमारे पास कॉस्ट फंक्शन वर्ड यूज करते हैं ना, मीन स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स निकालने के लिए, मीन्स निकालने के लिए हम कॉस्ट फंक्शन वर्ड यूज कर लेते हैं. इसी तरह सिग्मॉन्ड फंक्शन जो किसके नीचे आता है? एक्टिवेशन फंक्शन के नीचे आता है. ओके, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करने लगे हैं. थिंक नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पोल. बाद में करते हैं, पहले नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं. ओके, स्क्रीन इज विजिबल, स्लाइड विजिबल है सबको? नहीं, लोड विजिबल है स्क्रीन सबको? स्लाइड्स अवेलेबल विजिबल है? यस मैम. गुड. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा न्यूरल नेटवर्क. न्यूरल नेटवर्क. नाउ neural network is basically comes under the deep learning. This neural network is basically comes under the deep learning. कि deep learning में जैसे हम image recognition, text recognition, वो सारी चीजें किसमें आती हैं? neural network के अंदर. neural network is basically neural. neural मतलब हमारे जो ह्यूमन बीइंग के साथ डील कर रहा है. हमारा ब्रेन है विच कंटेन्स द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, और उसको सबको नर्व्स के साथ हम मैच करते हैं. ठीक है. अब क्या होता है, हमारे ब्रेन जैसे वर्क करता है ना, जैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है, ठीक है, उसी तरह मशीन लर्निंग में डीप लर्निंग कंसेप्ट के अंदर न्यूरल नेटवर्क का कंसेप्ट यूज किया है कि जैसे ह्यूमन सोचता है, अपने आप ही प्रिडिक्ट करता है, अपने आप ही आंसर प्रोवाइड करता है फ्रॉम देयर प्रीवियस एक्सपीरियंस. रीइंफोर्समेंट, लर्न फ्रॉम हिज प्रीवियस एक्सपीरियंस हम जो कह सकते हैं, है ना, जो हम कह सकते हैं, वो सारे किस में आते हैं? न्यूरल नेटवर्क में. कि मशीन लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि एज ए ह्यूमन थिंक कर सके. लाइक इफ आई से देयर इज द 5, the machine predicted is a 5. okay, if I say कोई भी अल्फाबेट लिखती हूँ तो वो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करे ए. ठीक है, तो वो इमेज रिकॉग्नाइज कर रहा है. तो इमेज कैसे रिकॉग्नाइज करता है? थ्रू द कंसेप्ट ऑफ द न्यूरल नेटवर्क दैट कम्स अंडर द डीप लर्निंग. ओके, न्यूरल नेटवर्क मींस व्हेन वी डील्स विद द ह्यूमन ब्रेन. अब न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है? विच कंटेन द 3 layers. Any neural network in the machine layer, in the machine learning कह सकते हो, deep learning word यूज कर सकते हो. ठीक है, हम तो बेसिक्स कर रहे हैं ना, तो हम machine learning word भी यूज कर सकते हैं. Neural network is basically divided into two 3 layers. There is the one layer, this is the one hidden layer. Okay, there is the one input layer. एक हिडन लेयर होती है, एक इनपुट लेयर होती है. देयर इज अ वन हिडन लेयर. देयर इज ये लेयर्स जो है हमारी क्या हो गई? दिस इज कॉल्ड इनपुट लेयर एंड दिस इज कॉल्ड आउटपुट लेयर. 3 मेन लेयर्स होती हैं हमारी न्यूरल नेटवर्क के अंदर. दिस इज द इनपुट लेयर वेयर द यूजर डाटा इनपुट करता है. ठीक है, वो इनपुट लेयर होगी. हिडन लेयर जो होती है ना हमारी, दैट विल कंटेन द नंबर ऑफ थिंग्स. कि एक हिडन लेयर नहीं होती, इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं. लाइक दिस, इट विल कंटेन मल्टीपल हिडन लेयर्स
and which perform the multiple purposes. Which perform the multiple purposes. ये hidden layer है. Hidden layer contains only one single layer नहीं है. It contains the multiple layers. Okay. And last will contain the output layer from which we get the our output. Suppose if I input the 5, the machine should predict it 5. अगर वो accurately work कर रही है तो वो कैसे predict करती है? With the concept of the neural network. Clear? Neural network is basically how machine deals with the human brain. Human brain कैसे deal करता है उसी तरह वर्क करने के लिए उन्होंने क्या बना दिया? न्यूरल नेटवर्क. और न्यूरल नेटवर्क में जब भी काम करना हमें 3 लेयर्स की जरूरत पड़ेगी. एक हमारी क्या होगी? इनपुट लेयर, सेकंड इज द हिडन लेयर, थर्ड इज द आउटपुट लेयर. ओके. और ये क्या, इनको क्या कहते हैं हम? ये सर्कल्स को क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड नोड्स. दीज आर कॉल्ड नोड्स. दिस इज ऑल आर द नोड्स. ठीक है, ये सारी क्या है? नोड्स हैं. और यहां से ये जो लिंक है, ठीक है, इस लिंक के ऊपर क्या होता है? वेट. इसके ऊपर क्या होता है? वेट. आगे जाके डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट इमेज इज क्लियर टू एवरीवन. ये समझ लग गया न्यूरल नेटवर्क. अब न्यूरल नेटवर्क में आप इमेज के अंदर देखो, एक नोड है. अब आपके जो सामने पीपीटी में स्लाइड में इमेज है ना, वो मैं बना रही हूँ. देयर इज वन नोड एंड देयर इज अनदर नोड. ये दोनों नोड्स क्या है? इनपुट लेयर. अब ये इनपुट लेयर जो है ना, सपोज मेरे पास हिडन लेयर्स कितनी है? 1 2 3 4 हिडन लेयर्स है. ठीक है. तो ये जो इनपुट लेयर है, ये क्या करेगी? इसके साथ भी करेगी मैच, इसके साथ भी मैच करेगी. ठीक है. इसके साथ मतलब कि हर एक लेयर के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी. सिमिलरली like this, and then this will provide us output. This will provide us output. Okay, ये हमारा दो इनपुट दी. यहाँ पे भी इनपुट हो सकती है, यहाँ पे भी इनपुट हो सकती है. ठीक है. और हिडन लेयर्स को प्रोवाइड करती है. हिडन लेयर एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद क्या करेगा? आउटपुट प्रोवाइड करेगा. और हर एक जो इनपुट लेयर है, दैट इज कनेक्टेड टू ईच हिडन लेयर. दैट इज कनेक्टेड टू द ईच हिडन लेयर. नाउ जो हमारे ब्रेन के नर्व्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उनके साथ जैसे हम वर्क करते हैं उसी तरह हमारा न्यूरल नेटवर्क भी वर्क करता है. ओके. लाइक जैसे हम सेल्फ ड्राइविंग कार की बात कर रहे हैं कि मशीन खुद ही ड्राइव करे, तो बेसिकली दैट वहां पे हम क्या यूज करें? न्यूरल नेटवर्क कंसेप्ट. सिरी जो यूज करते हैं एप्पल के अंदर, ठीक है, दैट आर आल्सो यूजिंग द न्यूरल नेटवर्क कंसेप्ट. ओके. गूगल्स, दैट इज आल्सो यूजिंग द न्यूरल नेटवर्क कंसेप्ट. ओके. यहाँ सब में क्या हो रहा है? न्यूरल नेटवर्क का कंसेप्ट यूज हो रहा है. एंड न्यूरल नेटवर्क कहाँ कहाँ वर्क परफॉर्म कर रहा है? आप दे सकते हो इसमें कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं? न्यूरल नेटवर्क कैन परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क. कौन कौन से टास्क हैं? यस, न्यूरल नेटवर्क के साथ कौन कौन से ऑपरेशंस हो रहे हैं अभी तक? यस, एनीवन? Speech recognition. Speech recognition, translate text, Yes. identify the faces, Yes. recognition of characters. Yes. ठीक है. रिमोट कंट्रोल रोबोट्स, ये सारे Yeah. क्या है? दीज ऑल आर यूजिंग द न्यूरल नेटवर्क कंसेप्ट. ये सारे यूज क्या कर रहे हैं? न्यूरल नेटवर्क. Yes. ओके. यहाँ सब में न्यूरल नेटवर्क यूज हो रहा है. लाइक दिस ह्यूमन ब्रेन है. ह्यूमन ब्रेन एक दूसरे के साथ डील करने के लिए, ठीक है. इसी तरह जैसे एक लेयर है, दूसरी लेयर एक दूसरे के साथ वर्क कर रही है. आप मेरे सामने जो इमेज बनी हुई है और सामने आपको इमेज दिख रही है, दैट इज लाइक द सेम दिस इमेज, और जो आपको सामने विजिबल है लाइक द ना लाइक ब्रेन, सेम ही लग रही है. दिस इज वन नेटवर्क विच इज कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क एंड दैट इज द ब्रेन. दैट इज ह्यूमन ब्रेन. यू कैन सी इन द इमेज. नाउ हियर दिस इज द मेन थिंग जो आपके है. I had already discussed
कि हमारे पास न्यूरल नेटवर्क है, ग्रीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज इनपुट लेयर, input layer, the input that is taken from the user, that is input layer. Now feature, hidden layer. अब hidden layer इसमें बताया है कि hidden layer, मैंने कहा था ना hidden layer एक नहीं होती, there are multiple hidden layers, there are the multiple hidden layers, okay, and इसने तो input ले ली user से, इसने output provide कर दी. अब hidden layer क्या करती है? Yes, hidden layer क्या करती है? Anyone? मेन वर्क वही करती है लॉजिक। यस, मेन वर्क ही, मैंने कौन कौन से मुझे फीचर्स चाहिए इसको फाइंड आउट करने के लिए, मुझे कौन से फीचर एक्सट्रैक्ट करने हैं, सिलेक्ट करने हैं, ठीक है ना, मुझे कौन कौन सी कैलकुलेशंस करनी है, कौन सा फंक्शन यूज करना है, कौन सा एरर फंक्शन यूज करना है, कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करना है, वो कहाँ पे होता है सारा, इन द हिडन लेयर, इनटू द हिडन लेयर. Yes or no? This will take the input from the user. This will provide the output to the user, and this will perform the whole function, that is calculation, selecting of the feature, extracting of the features. Okay, all of the functioning is performed by the hidden layer. Clear? Yes. Any doubt? Any question? ये मेन स्ट्रक्चर के ऊपर ही हमने नेक्स्ट काम करना है अपना, तो ये स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए आपको कि इनपुट लेयर का क्या पर्पस है, आउटपुट लेयर का क्या पर्पस है. नाउ नेक्स्ट मूव टू द इनपुट लेयर, बता दिया आपको. ओके, एक्सक्यूज मी मैम, यस यस, एक्सक्यूज. यस यस, ये जो आउटपुट लेयर है वहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे दो क्यों नहीं आ सके? मोस्टली मैंने तो जो पहला डाटा सेट लिया था ना, उसमें मल्टीपल इनपुट्स ले रही थी. जी अगर सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, यस तो मशीन एक टाइम पे तो एक ही आउटपुट प्रोडिक्ट करेगी ना. यस हमारे पास डाटा सेट के अकॉर्डिंगली है, मॉडल के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर काम कर रहे हैं. यस एक 5 इनपुट किया, एक मोड पे चलेगी, उसके अकॉर्डिंगली हिडन लेयर आउटपुट तो मेरी एक ही आएगी ना. जी मैंने मॉडल का बोलना है कि टेल मी ये इमेज कौन सी है, यस तो इमेज के आंसर तो एक ही आएगा ना. यस यस, ठीक है ना. अभी But ma'am- अभी तो आप सिंगल नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हो ना, दैट्स जी। आर वी यूजिंग द सिंगल आउटपुट. ओके ओके ओके, ओके मैम, now next move to the next. Now you can see same, this is the input layer. Okay, अब input layer को क्या रिप्रेजेंट किया है, here it is x1, here it is x2, and ये क्या किया गया इसने, इसको इसके साथ रिलेट किया, हिडन लेयर h1, h2, h3, h4, एंड दिस इज द आउटपुट लेयर, हम ओ लिख देते हैं. ठीक है, ये क्या है, वेट है, दिस इज अ W1 वेट, यहां से इसका लिंक W2 वेट, यहां से इसका W3 वेट. वेट मीन सम वैल्यू, वेट मीन सम वैल्यू, एंड दिस x1 इज आल्सो सम वैल्यू. ओके, ये सारे वैल्यूज होंगे, आगे जाके बताती हूँ आपको. ये वेट है. अब जो हिडन लेयर है ना, मैंने आपको हिडन लेयर अभी बताया कि परफॉर्म द मल्टीपल थिंग्स. जो सबसे मेन थिंग है वो परफॉर्म करती है, पहला स्टेप करती है वो, दैट इज समीशन, मींस एडिंग ऑफ डाटा. पहले वो क्या करती है, सारे डाटा को ऐड करती है. डाटा ऐड मींस x1 into W1, x1 into W1 plus x1 into W2, x1 into W3, x1 into W3, सम को ऐड कर रही है वो, दैट इज एडिंग. देन आफ्टरवर्ड्स implementing the activation function. एक्टिवेशन फंक्शन मैंने अभी आपको कौन सा बताया था, एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा किया हमने, अभी हमने एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया ना, वर्ड यूज किया था पीछे किया हमने यूज एक वर्ड. लॉजिस्टिक में लॉजिस्टिक में कौन सा यूज किया है, सिगमेंट फंक्शन. सिगमेंट फंक्शन यस मैम. वो
वो सेगमेंट फंक्शन जो है प्लस सेगमेंट फंक्शन जो उसने बनाया ना ये सिंबल एस, दैट इज कॉल्ड द सेगमेंट फंक्शन, सबको ऐड किया और उसके ऊपर क्या लगाया, सेगमेंट फंक्शन। तो उसके वो कहां पे हुआ सारा ऑपरेशन, इनटू दिस हिडन लेयर, और वो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद ही हमें क्या मिली है, आउटपुट। मैंने अगर कोई इमेज प्रेडिक्ट करनी है, इनपुट लूंगी, हिडन लेयर के पास भेजूंगी, हिडन लेयर सारे डाटा को समाप्त करेगा, उस पे एक्टिवेशन फंक्शन जो है हमारा सेगमेंट फंक्शन लगेगा, ठीक है, और सेगमेंट फंक्शन लगाने के बाद वो कैलकुलेट बताएगा हमें आउटपुट, वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, आउटपुट। समझ लग गया, यस और नो, यस, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन till now? Shall I move to the next thing? Yes. Yes, students. Shall I move to the next thing? Yes. Yes. Okay, let's move to the next thing now. अब now artificial neurons, ये सारी कंसेप्ट पता लग गया सबको? अब इसी के अंदर ये सारा हमारा है नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क, और ये ऐसे काम करता है, मैंने आपको बता दिया। आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स मतलब जो हमारे ह्यूमंस के न्यूरॉन्स हैं उनकी बात ही कर रहे हैं। अब इसमें आर्टिफिशियल मींस इन द मशीन लर्निंग, इन द डीप लर्निंग, उन आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को कहते हैं, क्या कहते हैं? भी लिखा हुआ है, बोलो कौन बताएगा? परसेप्ट्रॉन्स। यस, क्या कहते हैं निखिल, क्या बोलते हैं? परसेप्ट्रॉन्स मैम। Yes, perceptrons. We called it perceptrons. And perceptrons क्या है बेसिकली? जो अभी हमने पूरा का पूरा नेटवर्क किया था ना, हमने ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क किया था, दैट इज परसेप्ट्रॉन्स। अब परसेप्ट्रॉन्स में क्या है, हमारे पास टर्म्स कौन कौन सी है? पहली टर्म कौन सी है लिखी हुई? इनपुट। इनपुट जो हम ह्यूमन बीइंग से लेते हैं। second term is weight। अब इमेज लेके चलो, पहले मैंने क्या बनाया था, इनपुट, वो मेरा स्टेप फर्स्ट है, उसके बाद लाइन बनाई, दैट इज द वेट, वो वेट हो गया मेरा। थर्ड स्टेप क्या है? अब क्या होता है, हमें हिडन लेयर में, हर एक हिडन लेयर, जितने भी हिडन लेयर्स हैं, इन सबको टेस्टिंग है, इसमें यूज करते हैं बायस, और बायस की वैल्यू हम यहाँ पे हर एक में कांस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। बायस आपको पता है क्या यूज करते हैं, और हिडन लेयर की एक बायस वैल्यू होती है, वो सभी के लिए क्या होती है, कांस्टेंट। दिस इज अ कांस्टेंट, और जब इसके साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, बायस एक कांस्टेंट वैल्यू। फोर्थ इज एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन में जो आपको समिंग कर दिया और सिंगपॉइंट फंक्शन लगा दिया हमने, वो आ गया। एंड लास्ट कम्स द आउटपुट, मींस जो मैंने आपको अभी बताया उसके अंदर अगर बायस भी ऐड कर दे तो मेरा क्या बन जाता है, पूरा का पूरा परसेप्ट्रॉन। ओके, परसेप्ट्रॉन। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स contain these 5 things: input, weight, bias, activation function, and the output. Okay, clear? Yes, which is also called an artificial neurons. और listen, ये जो परसेप्ट्रॉन है ना, हम जो परसेप्ट्रॉन वर्ड यूज कर रहे हैं, ये बेसिकली यूज होता है हमारा, मोस्ट ऑफ द केसेस वी यूज्ड इट इन ए सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम के अंदर हम यूज करते हैं परसेप्ट्रॉन्स, एंड इट इज मेनली यूज्ड फॉर द बाइनरी क्लासिफिकेशन। परसेप्ट्रॉन इज द न्यूरल नेटवर्क का, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस करता है, और ये बेसिकली डील किससे कर सकता है, सुपरवाइज लर्निंग के मेन यूज करते हैं एल्गोरिदम्स,
और बाइनरी क्लासिफिकेशंस लाइक आउटपुट किसमें देता है 0 और 1 के अंदर. इट प्रोवाइड द वैल्यू इनटू द फॉर्म ऑफ द 0 और 1. Perceptrons are basically used for the binary classification, and as you know binary classification deals with the 0 and 1. It means जो machine है वो provide क्या करेगी answer in the form of the 0 and 1. ओके नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें ये कैसे हो रहा है सारा. मैं भी आपको सिर्फ हिंट बता रही हूँ कि ये चीजें होती है, ये टर्म यूज करते हैं. कैसे टर्म यूज करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, वो सारा हम डिस्कस करेंगे. रिसेंटली वी डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक टर्म्स कि है क्या, इसे यूज कैसे करते हैं, ठीक है, कहाँ पे यूज करते हैं. ओके नाउ यू कैन सी इन द इमेज स्लाइड आल्सो कि एन क्या लिए, मल्टीपल इनपुट्स लिए, ठीक है. मल्टीपल इनपुट्स के सेंटर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक हिडन लेयर आ जाएगी एंड आउटपुट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द 0 and 1 and output will be in the form of 0 and 1. Means this perceptron deal with the binary classification. Whenever we want to classify the data, we can also use the concept of the neural network, which include the perceptrons. Clear? Yes. Any doubt, any question till now? Yes, students. Any doubt, any question till now? मैम जो आपने कहा था कि न्यूरल नेटवर्क का जो कंसेप्ट है वो डीप लर्निंग में है. Yes, 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 yes. तो मैम वो डीप लर्निंग जो कंसेप्ट आया वो न्यूरल नेटवर्क से ही आया है, मतलब आगे जो डीप लर्निंग जो आई है वो न्यूरल नेटवर्क से ही आई है. यस जैसे यस यही है कि मैं कहती हूँ ना कि मेरी इमेज रिकॉग्नाइजेशन हो रही है, वो सारी क्या डीप लर्निंग ही है जी, मतलब वो सारा कंसेप्ट किसमें आता है, न्यूरल नेटवर्क के अंदर अंदर. न्यूरल नेटवर्क जो है मेन बेसिकली द डीप लर्निंग पार्ट. जी, मतलब अगर किसी ने उसमें कहा ना डीप लर्निंग पढ़नी है मैंने, तो उसको न्यूरल नेटवर्क का पता होना चाहिए सारा. ओके उसमें हम उसमें मतलब टोटली हम न्यूरल नेटवर्क के से ही डील करते हैं डीप हाँ लर्निंग. तो वही है. वही अगर है मैं जी. इमेज को रिकॉग्नाइज करना है तो इमेज मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग की तरह सोचना पड़ेगा कि जी कोई भी इमेज हो वो करेक्टली प्रेडिक्ट हो जाए. जी. अभी तक जो हमने पहले डिस्कस किया दैट इज अपॉन द डाटा. दैट यस यस डाटा कि मेरे पास अगर टेबुलर फॉर्म में इस तरह का डाटा है, यस ठीक है, जहाँ जी. डाटा को हम एक्सेल फॉर्मेट में प्रोवाइड, कोई इमेज है उसका साइज इतना है, उसकी एक फ्लावर है, पेटल के इतने पिक्सल्स हैं, उसका साइज इतना है, डाटा प्रोवाइड कर रहे थे. बट अब क्या है कि अगर मैंने ये पेन ही अपनी मशीन के आगे दे दूं और वो बताए मुझे दिस इज अ मार्कर, ओके दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ न्यूरल नेटवर्क. कि जो मशीन है वो वर्क करे एज ए ह्यूमन ब्रेन. ओके ओके And this is help with the help of the artificial neurons. Artificial neurons बनाते हैं. और artificial neuron कैसे बनते हैं? With the help of the perceptrons. ओके समझ लग गया सबको? यस मैम. Yes. Any doubt? Any question? Any more doubt? Any question? नो मैम. No. Okay. Let's move to the next slide. Next slide is. ये क्या किया, इसमें क्या किया अभी? यस पहले में उसने क्या किया, इनपुट ली और उसके आउटपुट प्रोवाइड कर दी. अब सेकंड ये क्या कर रहा है? यस यस व्हाट इज दिस? यस हिडन लेयर वर्किंग कर रही है. यस पहले में उसने जो एक लेआउट बता दिया कि मेरे पास ये इनपुट है, these are my input and this is my output. This is my input and this is my output. अब इनपुट और आउटपुट में क्या बना दिया उसने? हिडन लेयर. और हिडन लेयर में क्या हो रहा है? समेशन. हिडन लेयर में क्या हो रहा है? समेशन. ओके दैट इज नेक्स्ट कम्स them. Now next. अब यस अब इसमें बताओगे क्या किया? अब ये क्या कह रहा है? एनीवन? मैं बता चुकी हूँ आपको.
अब जो उसने हिडन लेयर है, हिडन लेयर के बारे में बता रहा है कि हिडन लेयर है उसमें क्या होता है, समिंग ऑफ द डाटा होता है, एंड समिंग ऑफ डाटा के साथ क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं। और आपके सिलेबस में जो आपने एक्टिवेशन फंक्शन पढ़ चुके हो, दैट इज अ सिग्मॉन्ड फंक्शन। सिग्मॉन्ड फंक्शन यूज कर चुके हो ना आप, लास्ट में स्लाइड के देखो, एक हाइपरबॉलिक है, ठीक है, ये सारे भी हैं, पर आपके सिलेबस में कौन था लॉजिस्टिक सिग्मॉन्ड फंक्शन, वो डिस्कस कर चुके हैं हम, तो वो हम यूज करेंगे। फॉर्मूला आपके सामने है, यस और नो? अब देखो बेटा, ये सिग्मॉन्ड फंक्शन ही क्यों यूज कर रहा है, मैं अभी दोबारा आपको बोल रही हूँ कि एक्टिवेशन हम फंक्शन में सिग्मॉन्ड यूज करेंगे। वाई? कोई और क्यों नहीं यूज कर रहे? ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का सिग्मॉन्ड ही यूज क्यों कर रहे हैं? वाई? क्योंकि मैम हमें यस और नो में आंसर चाहिए। Yes, exactly, because we want to deal with the binary classification. यस We are using the concept of the perceptrons, and यस perceptron provides the output in the form of the 0 and 1, and we can get the 0 and 1 from the logistic regression Sigmund function. Sigmund Yes. function में यही था ना हमारा, डाटा ऐसे हो जाता है, अगर डाटा कोई भी लाई करे above 0.5 it become the 1, less than this is a 0. Yes or no? यस मैम। That's why we are using the Sigmund function, because we want to deal with the binary classification. Now, neural network applications कहाँ यूज कर सकते हैं इसको, सबको पता लग गया, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है, दैट इज द पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, इन्वेस्टमेंट में, मोबाइल कंप्यूटिंग, फोरकास्टिंग, everywhere we can use the neural network. These are some advantages. डिसएडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस सबको पता है, डिसएडवांटेजेस क्या है? यस, एडवांटेजेस तो आप बता सकते हो, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उसको इन द फॉर्म ऑफ एडवांटेजेस यू कैन से, बट व्हाट अबाउट द डिसएडवांटेजेस? यस, एनीवन? सामने आपके डिसएडवांटेजेस हैं? मैम हाई प्रोसेसिंग मींस कंप्यूटेशन। यस, हाई, अगर तो मेरा डाटा सेट इज स्मॉल तो फिर तो देन इजी, बट आई कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ द हिडन लेयर्स, लार्ज अमाउंट ऑफ द 1000 हिडन लेयर्स, देन लार्ज विल बी द कंप्यूटेशन। लार्ज कंप्यूटेशनल टाइम, कॉस्ट विल बी इंक्रीज, यस आर्किटेक्चर भी उतना बड़ा हो जाएगा उसका, जी। और उतनी ज्यादा उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यस तो ट्रेनिंग भी वही नीड्स और मोर नीड्स। मोर, यस, दैट आर ऑल द डिसएडवांटेजेस ऑफ द न्यूरल नेटवर्क। यस नाउ परसेप्ट्रॉन्स, अब परसेप्ट्रॉन्स में मैंने आपको बता दिया कि किस लिए यूज करते हैं, कि हमारे मशीन एग्जे वर्क करे, ठीक है, और आपको ये भी बता दिया कि परसेप्ट्रॉन्स में मेरा डाटा कैसे वर्क करता है। अब ये देखो बेटा, इमेज इज विजिबल, मैंने एक फॉर्मूला डिस्प्ले करवा रही हूँ आपके सामने, सबको विजिबल है? यस मैम। यस, यहाँ पे ड्रॉ करने लगी हूँ अब मैं सेम चीज को। सबसे पहले ले लिया x1, सेकंड ले लिया x2, x3, x4, these are the input layers and n number of input layers can be there, n हो सकती है, ठीक है, ये n layers हो सकती हैं। सबसे हर एक लेयर का मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है हमारा, हमने एक ही हिडन लेयर बना देते हैं, ठीक है ना, एक ही हिडन लेयर सपोज, तो सबने एक साथ, इस लेयर ने इसके साथ डील करना, हर एक ने ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के लिए क्या होता है मेरा वेट, मेरा क्या होता है वेट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले हिडन लेयर क्या होता है, समेशन I1 to n, I1 to n, xi, x1 मतलब I, और w1 weight1 weight2 weight, ये वैल्यूज होंगी, these weight1 weight2 मतलब क्या वैल्यूज, ओके, एंड दिस इज द वैल्यूज, दिस इज आल्सो I, ओके, ये मेरा क्या बन जाता है
फॉर्मूला समेशन, मतलब इन सबको ऐड करना है हमने। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है समेशन का, एडिंग ऑफ द डाटा। ओके, और उसके बाद एडिंग के ऊपर क्या करते हैं हम, क्या लगाते हैं, हमारा सिगमंड फंक्शन। सिगमंड फंक्शन मतलब जो मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। इसके अंदर एक चीज और ऐड होती है, बायस, वो आगे जाके डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक यूज क्या होगा फिर उसके बाद, जो हमारा सिगमंड फंक्शन का फॉर्मूला है वो ऐड होता है, वो इम्प्लीमेंट होता है, और उससे हमें डिटेक्ट होता है कि 0 वैल्यू आएगी कि 1 वैल्यू आएगी, ठीक है। वही इमेज है जो मैंने आपको पहले बता दिया। क्लियर, क्लियर है सबको? आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस और नो? यस मैम। नाउ ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। ये देखो बेटा, ये क्या किया है, देयर वी आर क्लासिफाइंग द डाटा। डाटा को क्लासिफाई किया है, डाटा को क्लासिफाई किया किससे, विद द हेल्प ऑफ द perceptrons, with the help of the concept of perceptrons, with the help of the concept of the neural network, by applying the weights। ये सारा का सारा फॉर्मूला एग्जीक्यूट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, सारा का सारा आपको समझाऊंगी एक एग्जांपल के साथ। तो ये क्लासिफिकेशन जो आपके सामने दिखाई दे रही है, ये किससे हुई है, विद द हेल्प ऑफ द न्यूरल नेटवर्क, by using the concept of the perceptrons। okay, clear? yes। अब देखो, now let's take an example, numerical question is, assume we have two input neurons। question is we have दो इनपुट न्यूरॉन्स है हमारे पास, दो इनपुट न्यूरॉन्स मतलब दो मैंने यहाँ पे न्यूरॉन्स बना दिए, ठीक है। then afterwards then uses the segment activation function and have the following parameters। following parameters means जो हिडन लेयर है ना, हिडन लेयर के साथ वेट गिवन है क्या, 0 और 1। वेट क्या गिवन है, 0 और 1। और बायस की वैल्यू क्या गिवन है, बायस की वैल्यू कितनी गिवन है, 4, एंड बायस वैल्यू इज गिवन 4, ठीक है, ये गिवन है। अब हमारा मोटिव क्या है कि हमने, और x और y की वैल्यू क्या गिवन है, लेट्स एंड इनपुट वैल्यू ऑफ x और y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पे x की वैल्यूज गिवन है, x क्या गिवन है, भी बताओ जल्दी से। x की वैल्यू क्या गिवन है, दैट इज 2 and 3। 2 and 3। x की वैल्यूज गिवन है 2 and 3, मींस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। w की वैल्यू कितनी है, 0 है 1 है, 0 है 1 है, ठीक है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, x2 मल्टीप्लाई बाय w का ये 1 ले लेते हैं, यहाँ पे w2 ले लेते हैं, 1 प्लस समेशन x2 इंटू w2 प्लस क्या करते थे हम, बायस। बायस की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट। बायस की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट। अब x2 की वैल्यू अगर हमने ली है तो क्या ली है हमने, यहाँ पे ये x3 लिया ना हमने, और यहाँ x1 है ना, यहाँ पे x1 लिख देते हैं, यहाँ पे x2 ले लिया, ठीक है। x1 की वैल्यू कितनी है, 2, w की वैल्यू कितनी है, 0। यस और नो, समझ लग गया जो मैं कर रही हूँ? यस, एनी यस समझ लग रहा है का नहीं, समझ लग रहा है कि नहीं? यस मैम। यस। नेक्स्ट, प्लस x2 इज 3, w2 कितना है 1, बायस की सेटिंग कितनी है 4, तो आंसर कितना होगा,
Answer will be 7. समझ लगा ये? Yes, ma'am. Yes or no? इतना क्लियर हुआ है? यस Yes, मैम। ma'am. Yes. Then afterwards, ये मेरा क्या कैलकुलेट हो गया? हिडन लेयर का एक पहला स्टेप, दैट इज समीशन. दैट इज समीशन. हाँ, सामने आपको स्लाइड में भी विजिबल होगा. समीशन हो गया. क्लियर हो गया सबको? इतना क्लियर हो चुका है? यस और नो? यस Yes, मैम। ma'am. अब उसके बाद क्या करना है? सिंपल, जो मेरा सेगमेंट फंक्शन है उसके ऊपर लगा देना है हमने वैल्यू. आपको आंसर प्रोवाइड हो जाएगा. और जो आंसर आएगा, अगर तो वो 0 से, अब 0.0 आ रहा है 9, तो क्या होगा? दैट लाई ट्रू में आ गया. यस और नो? फंक्शन f7 की वैल्यू जो है ना वो आपकी आ जाएगी 0.099. ठीक है, तो ये कहाँ पे है? सेगमेंट फंक्शन में. अगर 0.50 से ऊपर होगी तो हम क्या कहते हैं? ट्रू. यस, 1. बाइनरी क्लासिफिकेशन 1 आंसर. मैम ये एक्टिवेशन फंक्शन लगाया ना यहाँ? हाँ, एक्टिवेशन फंक्शन लगाया है, सेगमेंट फंक्शन का फॉर्मूला लगाया है. ओके मैम। ठीक है ना? मैंने आपको दोबारा बता रही हूँ, जब भी मैंने हिडन लेयर का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हिडन लेयर का ऑपरेशन पहले करना है सम. सम क्या करना है? x1 इंटू w1 प्लस x2 इंटू w2, जितनी भी लेयर्स हैं उन सबको ऐड करना, प्लस बायस विच इज कॉमन फॉर ऑल द हिडन लेयर्स विद इनपुट. सबको ऐड करके एक बायस की वैल्यू होगी x1, आई रिपीट x1 इंटू w1 प्लस x2 इंटू w2 प्लस, और कोई नोड नहीं है, कोई और लेयर नहीं है, तो हम क्या कर देंगे? प्लस बायस. बायस की वैल्यू कितनी है? 4. ये मैंने यहाँ पे लगा दिया और ये मेरा समीशन हो गई. समीशन के बाद सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप इज एक्टिवेशन फंक्शन. Second step is to use the activation function and the formula is activation function का क्या है? 1 plus 1 by. और उससे मुझे डेसिमल्स में वैल्यू आएगी. इफ इट लाई अबव द 0.05, 0.5 से 0 होगी देन इट इज ट्रू. अगर कम होगी तो देन इट इज फॉल्स. 0 और 1 में आंसर आ जाएगा मेरा. यस, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? यस स्टूडेंट्स, समझ लग गया सबको? ये समझना बहुत जरूरी है, नेक्स्ट लेक्चर इसके ऊपर ही डिपेंड है टोटल. यस मैम। क्लियर? ये चीज कैलकुलेट करनी आनी चाहिए आपको कि मैंने ये वैल्यू कहां से कैलकुलेट की है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो है टोटली इसी के ऊपर डिपेंड है कि ये वैल्यू कैसे बनी. अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक सिंगल लेयर लेके, एक ही हिडन लेयर है और 2 इनपुट लेयर्स हैं तो एग्जीक्यूट किया है. दैट इट विल कंटेन द मल्टीपल हिडन लेयर्स. अगर मल्टीपल हिडन लेयर्स है तो हर एक हिडन लेयर के साथ हर एक इनपुट आएगी. ऐसे होगा. अगर मेरे पास हिडन लेयर्स गिवन है, अगर नहीं गिवन है तो एक ही होगी. अगर मल्टीपल्स है, जैसे ये हमारे पास एक और हिडन लेयर है, तो फिर इनपुट इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, ये सारे इसके साथ भी होगा, ये भी इसके साथ भी आएगी, इसके साथ भी आएगी. ओके, लाइक दिस. और सबका क्या होगा? यहाँ पे x1 की वैल्यू देगी, x2 की वैल्यू दी होगी, x3 की वैल्यू, और सबके वेट्स दिए होंगे और सबको इवैल्यूएट करना है आपने, समीशन निकालना है. क्लियर हो गया? बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको और डिस्कस करेंगे. बेसिक क्लियर हो गया? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूजिंग द न्यूरल नेटवर्क, हाउ वी कैन यूज द न्यूरल नेटवर्क. I repeat, neural network contains the 3 layers in the case of the machine learning. One is the input layer. Second is the hidden layer. Hidden layer performing the 2 operations. That is, one is adding and then activation function, which includes the logistic regression
लॉजिस्टिक रिग्रेशन का सिग्मॉइड फंक्शन वो यूज करते हैं, देन आफ्टरवर्ड्स द आउटपुट लेयर. ओके, दिस इज द मेन बेसिक डिजाइन ऑफ द न्यूरल नेटवर्क. ओके, yes, any doubt, any question by any student? समझ लग गया सबको? Yes, students? Clear? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. good. Okay, let's move to the next. Multi-layer. Multi-layer में क्या होगा? Multi-layer में when multiple hidden layers are there in the case of the perceptrons. Perceptrons के केस में अगर multiple hidden layers आ जाएंगी, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उससे कहेंगे multi-layer perceptron. And multi-layer perceptron is also called a feed forward artificial neural network. ये मैं आपको next time बताऊंगी टर्म का मतलब क्या है. Feed forward artificial neural network. Next time हम यूज करेंगे multi-layer perceptron का कंसेप्ट. ओके, समझ लग गया सबको? Yes, ma'am. Okay, now I'm going to share the another poll with you.